Hello, everybody. In today's episode, we have Dr. Sandeep with us. He's a psychologist, he's done management, he's written books, and he's also a TEDx speaker. But apart from all of this, his one liners and shairis will capture your attention the most. And honestly, this was one of the most insightful podcasts I've ever had. इस पॉडकास्ट में हमने बात की अबाउट मैनेजिंग इमोशंस, कैसे हम अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और हमने ये भी बात की कि कैसे हमारे इमोशंस हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं. एंड वी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग एनी ऑफ दीज, प्लीज लिसन अप अहेड. So, how are you feeling when I came up to you with the idea of podcast? I think my first reaction was that this is one young girl trying to do something creative, constructive, or you came with a reference. So I genuinely thought that the weight behind what you said Yeah. was actually doubled by the person you were referring to. Or इसके अलावा while talking to you, I realized that there was a spirit in your tone, as there was a pep in your voice. So I thought, take me stand. Thank you, sir. Thank you so much. In fact, when I was talking to you, I don't really am able to recognize people very efficiently. But when I was talking with you, I instantly made this out that you are very humble and very generous, because the way you talk really makes me think that you are very calm, quiet, sorted, that sort of personality. After this, please don't ask my family members. Okay. They'll not approve of what you just said. Just joking. Yeah. No, but still, you are really humble, I would say. Fine. In this podcast, I want to tell my audience that Sir has already done so many things. You can go through his website. I'll give you the link in the description box. I saw your profile. You are a speaker. You have written books. You do counseling. You are a psychologist. You've done management as well. So, firstly, I need to learn a lot of things about time management from you. So, during your college years or even now, what's the one thing that you daily do to manage your time and accomplish all those things? Well, I think I always say this, that at the base of it is only one line. Time for everything, everything on time. Place for everything, everything in its place. Wow, such a good start for the podcast. So, आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो हर चीज़ के लिए वक्त रखें, और हर चीज़ वक्त पे करें, हर चीज़ के लिए जगह रखें, और हर चीज़ जगह पर रखें. Correct. Yes. I genuinely think that if you can somehow Manage these. manage this, right? At the end of the day, Samriti, time management is a farce. Time management is essentially self management. वो सारे लोग जो कहते हैं कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो सेल्फ मैनेजमेंट बेटा Correct. वो अपनी इम्पल्स को रोक नहीं पा रहा. They are not able to control their instinct. They are not able to control their petty desires, their chip in aspirations. Yeah. They would like to pitch in everywhere. So it's more about emotion management. If you can manage your emotions, so manage your targets. This is actually my next question for you. You said that they invest their time in petty things which are not of much value, but I think as a person who is trying to do both the perspectives, I think a lot of people do or invest their time in other things which are not productive because they feel instant gratification from it. And that's how they're structured, right? The apps and all those things which are not productive or we consider as wrong. So I wanted to know, what's the emotional side of this? Like, as someone who studied emotion, so obviously this has some emotional side to it. So I want to know the logic behind it from you. First of all, am I supposed to speak only in English or a combination of No, English? if you can speak in Hindi, I would highly appreciate, because a lot of audience, they speak Hindi. Wow. So if we can have a mix of both, if we can have Hindi more. This is amazing because एक NRI जो है वो भली 25 बरस से बाहर रह रहा हो, उससे में वो काली चंडी नहीं पकता है. Correct. At the end of the day, totally kill that punch when you say you butthead, you knucklehead. Correct. You need to use some other voice. So coming back to the point, आप जब टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और आप कहना है कि जो पेट की डिजायर्स दिन की हम बात कर रहे थे, एंड यू यूज्ड अ वंडरफुल वर्ड द टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. एक्चुअली क्या होता है समृद्धि,
हमारे ब्रेन को अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन के जो निचले सेंटर्स हैं वो इम्पल्सिव सेंटर्स, क्योंकि वो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन, हमारा मेमेलियन ब्रेन है। और हमारा जो ऊपर का हिस्सा है ब्रेन का, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, वो प्राइमेट ब्रेन है। और उस पर भी अगर आप ये आँखों के पीछे के, आँखों के सॉकेट के पीछे का हिस्सा देखें, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो वो 4% हिस्सा जो हमारे ब्रेन का है वो शुद्धता ह्यूमन ब्रेन है। उसके अलावा 96% हमारा जो ब्रेन है वो एनिमल ब्रेन है। तो देखा जाए तो हमारे अंदर 4% ह्यूमन ब्रेन को 96% एनिमल ब्रेन के साथ जीना होता है। अब यहाँ एनिमल ब्रेन का मतलब ये नहीं है कि जानवर बुरा होता है। जानवर जो है वो जिसमें जान है उसे जानवर कहा जाता है। तो जितने जानवर हैं वो बुरे नहीं हो, बस वो ज़्यादा इंस्टिंक्टिव होते हैं, ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं उन मामलों में जहाँ पर उनकी इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो उनको वो करने को कहती हैं जिनसे उनके 2 इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी गोल्स सर्व होते हैं। पहला सर्वाइवल और दूसरा प्रोक्रिएशन। तो अब क्या होता है कि हम सारे ह्यूमंस जो हैं हमारे अंदर में 96% तो एनिमल ब्रेन है, तो वो तो सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों के आसपास घूमेगा, सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन। आपको अचानक से कोई पोटेंशियल मेट देखा, अब आपका दिमाग उधर घूम गया। अब वो पोटेंशियल मेट हो सकता है आपको वेबसाइट पे देखा, हो सकता है इंस्टाग्राम पे देखा, हो सकता है वो पोटेंशियल मेट कहीं और नहीं देखा, आपको अपने जहन में दिख गया। अच्छा, आपको अचानक से कुछ खाने की चीज़ दिखी, स्पेशली शुगर वाली, तो आपको लगा भाई हमारे एंसेस्ट्रल पास्ट में, हमारे एवोल्यूशनरी हेरिटेज में शुगर जो है वो लग्जरी थी। अब हमें अचानक से शुगर सामने दिखी, अब हमसे रहा नहीं किया। वो जो डोनट है, वो डोनट जो है वो अब हमारे हाथ में आएगा और फिर हमारे पेट में जाएगा। अब ये जो है, ये सारी डिजायर्स जो हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी हमारे अंदर था एक साथ, पर वो एनिमल्स में चल जाते हैं, क्योंकि एनिमल्स अपनी इंस्टिंक्टिव डिजायर्स को सुनने के बाद उस तरह के हैबिटेट में जीते हैं जहाँ पर उसका कंपनसेशन हो जाता है। हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम लोग एसी में बैठे, अब उसके बाद में शुगर खाएगा और उसके बाद में बाहर से निकलो और मैं चलूँगी ना, मैं यहाँ से वहाँ तक भी स्कूटी से जाऊँ, मैं यहाँ से उठा के ओला ढूंढूँ, वहाँ से ऊपर, यहाँ से गाड़ी पकड़ूँ, यहाँ से लिफ्ट, और उसके बाद जो है मैं कहूँ कि भाई मेरी वेल टोन्ड बॉडी नहीं है, मेरी वेल टोन्ड बॉडी है, मेरा मन देखो तो होना ही है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम अपनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो डिजायर्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते उस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जिसमें हम जी रहे हैं। एंड दैट्स वेयर एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशंस कम्स इनटू प्ले। Correct. I really like the idea of 96% animal brain. I did not know this earlier. And if I'm right, तो इसका conclusion मैं एक funnel में निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि 96% of our brain is animal brain. So we usually think of 2 things, which is survival and procreation. And जो 4% brain होता है, that's only human brain, which helps us think what's right, what's not, the decision making factor, right? What we say as something जो हम rationality के साथ conscious decisions कराते हैं, that's पेशेंस, परसिवरेंस, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन, ये सब okay, understood. Very nice examples. So again, I have another question. जैसे अब मैंने शुगर देखा, तो शुगर से भी मेरी बॉडी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, एंसेस्ट्रल पार्ट दैट वी टॉक्ड अबाउट, तो उनको उस बॉडी को मेरे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, बट हाउ डू आई रिवर्स इट? Like, because I read it in a book, if you wanna, make bad habits, if you wanna leave bad habits, then you need to make them dissatisfying. So to make them dissatisfying, emotions come into play. So I wanna know from you, what emotional play I can make or I can do so that I can control my sugar cravings, my extra, how people spend their times in Instagram and scrolling. So all those things. इसमें बड़ा सिंपल सा बात है। ये पुराना एक कहानी है जो मुझे लगता है एक्सटेंडल एग्जाम सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी अलग अलग तरीके से, कि एक दादा जो है वो अपने पोते से बात कर रहा था, तो पोते से वो कहता है कि बताओ तुम्हारे जहन में कोई सवाल है क्या? तो वो कहता है कि ग्रैंडपा, व्हाई डू आई फील सच रेस्टलेसनेस इनसाइड मी? व्हाई इज ऑलवेज देयर अ सर्टेन फाइट बिटवीन 2 एस्पेक्ट्स? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इट इज़ बिकॉज सन, वी हैव 2 wolves in our head. One is a good wolf and another is a bad wolf. But they keep fighting. तो ग्रैंडसन पूछता है, then grandpa who wins? So grandpa says the one you feed. Correct. So
if you'll feed your 4% brain more, it will get stronger. Yeah. If you feed 96% brain more, it will get stronger. Oh, correct. अब छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका. ऐसा मानना है मेरा कि पहले तो शुगर पूरी नहीं होती. ऑफ कोर्स शुगर पूरी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे ब्रेन के जो 3 इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फ्यूल्स हैं वो क्या है? ऑक्सीजनेशन, हाइड्रेशन और शुगर लेवल. Yeah. इसीलिए तो आप देखेंगे कि IMF से लेके यूनेस्को से लेके और दुनिया के सारी इंपॉर्टेंट जगहों पर आपको सारी कॉन्फ्रेंस रूम्स में हमेशा 2 चीज़ें मिलेंगी. एक है पानी की बोतल और दूसरा है कैंडीज. Yeah. अब कैंडीज वहाँ क्या कर रही हैं? आप IMF में, आप वर्ल्ड बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में, माइक्रोसॉफ्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में, अब वहाँ पे आए वो कैंडीज क्या करती है? कैंडीज ये कर रही है कि आपको अपना शुगर लेवल मेंटेन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टे पेशेंट, इन ऑर्डर टू एनालाइज. क्यों जो जज होते हैं जुडिशरी में, उनको इम्पोर्टेंट होता है टाइम पे खाना, टाइम पे छुट्टी लेना, टाइम पे सोना. क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो डिसीजन ले रहा है. Yeah. और डिसीजन के लिए शुगर लेवल का ऑप्टिमम होना बहुत जरूरी है. Correct. तो हम पहले तो एंटी शुगर नहीं है यहाँ पे. ठीक है? Yeah. हम ये कह रहे हैं कि वो जो हमारे अंदर की लड़ाई चल रही है, गुड गोल फॉर बैड गोल, उसमें आप किसे फीड कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. Correct. अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, उसी लाइन पे वापस आता हूँ. टाइम फॉर एवरीथिंग माय टाइम. अब क्या मैं इंस्टाग्राम पे नहीं? बिल्कुल मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं लिंक्डइन पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, सब जगह. लेकिन सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट. अब कोई मुझसे कहे कि आपके 10 मिनट जो है वो कभी दोपहर में भी तो चुरा लीजिए. कभी आपका मन अच्छा नहीं हो तो इंस्टा ऐसे ही घूम लिया कीजिए. पर मैं अपने ब्रेन को जो आदत डाल रहा हूँ वो कौन सी? मेरे उस 96% ब्रेन को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि जब भी लगे ना कि तुम्हारा दिन तुमसे झिला नहीं रहा है तो क्या करो, तुम ये सब छोड़ के इंस्टाग्राम पे आया करो. Now when I feed it, it gets stronger. Correct. And that's why हमारे यहाँ कहावत है, हिंदी में हम सब लोग पहले सुनते हैं कि जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता नहीं पूछा है. Correct. तो ज़्यादा अच्छा है भी उस तरफ रहो ही मत. Yeah. तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस हिस्से को फीड कर रहे हैं. क्या इसका मतलब ये है कि एनिमल ब्रेन को फीड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए. इनफैक्ट बड़ा अच्छा शेर है वो, अच्छा है दिल के पास रहे पासबान आके, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो. दिल के ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, पर फिर दिन में एक बार आपको उसको तन्हा भी छोड़ना पड़ेगा. दिल को दिल की करने दीजिए. Correct. तो जो सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज करते हैं लोग, वो जो हैं वो भी चीट डे रखते हैं. Correct. वो क्यों रखते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक प्रेशर तो बिल्ड होता है ना उस एनिमल ब्रेन का. आप उसे अनलीश नहीं करेंगे तो अंदर से आपको जो है ब्लैकमेल तो करेंगे. Correct. सो इट्स अबाउट बैलेंस. Yeah, and I think आप एक टाइम तक if you're feeding your human brain more, like or if you're not feeding your animal brain, तो एक point of time आएगा, that's when you feel burnout. ओ यस, यू फील बर्न आउट, नहीं तो बोर्डम. Correct. दोनों में से एक. Yeah. या तो बर्नआउट फील करोगे या बोर्डम फील करोगे. और हमें से अधिकतर लोग जो है वो या तो बर्नआउट फील करते हैं या बोर्डम फील करते हैं. And that will ही बड़ा है. अब ये बर्नआउट है, ये बोर्डम है, ये बैलेंस है. भाई धरती पे जीवन क्यों है? समृद्धि धरती पे जीवन इसलिए है क्योंकि वो सूरज से ऑप्टिमम डिस्टेंस पे. हमसे पहले वाले में नहीं है, हमसे बाद वाले में नहीं है. क्यों? क्योंकि हमसे बाद वाला ज्यादा क्लोज हो गया, हमसे बाद वाला का पहले वाला ज्यादा क्लोज हो गया, बाद वाला दूर हो गया. तो हम बिल्कुल ऑप्टिमम डिस्टेंस. जिंदगी में आप दोस्तों के साथ बहुत टाइम बिताइए तो आप परेशान होंगे, फैमिली के साथ बहुत टाइम बिताइए तो भी परेशान होंगे. आप लव लाइफ को जरूर ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए तो परेशान होंगे, कम देंगे तो परेशान होंगे. आप एक से ज्यादा कर देंगे तो परेशान होंगे, कम करेंगे तो परेशान हो जाएंगे. क्योंकि आपको मैक्सिमम मिनिमम के बीच में कुछ ऑप्टिमम भी तो होता है. मुझे लगता है वो ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, उससे सॉल्व. And again, optimization के लिए you need to have a very strong emotional balance because नॉट ऑन द थिंग. आई एम सॉरी बीच में टोक कर. इमोशनल बैलेंस बीच में कुछ होना भी है. okay, मतलब that's true. मतलब वो एक फिल्मी डायलॉग है एकदम. मुझे बड़ा अच्छा लगता है फिल्मी डायलॉग. आज तो ये पगली झूम के नाचेगी. आई लव दैट लाइन. आई थिंक सिंबलिकली इट इज सच अ ब्यूटीफुल लाइन कि आप पिया बहुत हो गया, मैं हफ्ते बस बहुत अच्छे हो गया, आज ये पगली झूम के नाचेगी. आई एक्चुअली कॉल इट आज तो पगली झूम के नाचेगी मोमेंट दैट एवरीवन शुड हैव ऑलमोस्ट एवरी डे. Correct. सो नॉन इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं लगानी है उसमें. बैलेंस. Yeah. सॉरी आई कट यू शॉर्ट. हाँ. No, actually your point was it instantly answered me the question I was about to ask you. So I'm good psychologist then. Correct. I'm a life psychologist. No. Psychologist listens before he No. speaks. Good. no, but I think you have that you have a really good instinct. You definitely like recognize what am I going to say, what can be my question, and the fact that
The moment I think of a question, your next line answers that question. Yeah. So I want to know from you, how did you go into psychological field? Like, what was your point when you felt that this is for me? मुझे लगता है जैसा मैथ्स के साथ मेरा रिश्ता है कि आई ऑलवेज लव मैथ्स बट मैथ्स नेवर लव मी बैक. दिस इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम. Same boat then. तो साइकोलॉजी के साथ ऐसा नहीं था. आई थिंक मैं साइकोलॉजी से हमेशा से प्यार करता था, साइकोलॉजी मुझसे हमेशा से प्यार करती थी, पर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे. अच्छा. शुरुआत हुई पोइट्री से. डॉक्टर सलमान अख्तर हैं मेरे, जिन्हें मैं अपने रोल मॉडल्स में से एक मानता हूँ. वो जावेद अख्तर के छोटे भाई, अगर ऐसा बोलूँ तो उनको बुरा लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स आइडेंटिफिकेशन की जरूरत था. नो ऑफेंस सर. सो डॉक्टर सलमान अख्तर कमाल के शख्स. ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोएनालिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं. वो कहते हैं पोइट्री इज़ 1% डूइंग साइकोथेरेपी. क्योंकि जब इंसान पोइट्री लिखता है तो वो एक्चुअली अपनी साइकोथेरेपी कर रहा होता है. और वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, एंड पोइट्री इज 1% डूइंग साइकोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी इज 2% डूइंग पोइट्री. दैट इज ब्यूटिफुली पुट. Yeah. सो आई टेक दिस लीड फ्रॉम हिज बुक लाइक एंड आई से कि मेरा पोइट्री के साथ रिश्ता जो शुरू से था, उससे मुझे ये तो पता लग गया था कि मन ही मन में साइकोलॉजी को चाहता हूँ. पर क्या होता है, कई बार आप किसी को चाहते हैं पर थोड़ा वक्त लगता है पता चलने में कि आप उसे चाहते हैं. Correct. और मुझे लगता है वहाँ से मैनेजमेंट और फिर मैनेजमेंट से साइकोलॉजी का जो डोमेन था वो धीरे धीरे आया. क्योंकि आज से काफ़ी बरस पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि आप हमें ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं करियर के टर्म्स में. एंड आई सेड मैं अपने करियर का आधा वक्त ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ और फिर बाकी आधा वक्त लोगों तक ज़्यादा, यानी ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ाना चाहता हूँ. ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और फिर लोगों तक ज़्यादा. So you want to go deep. Yes. Okay. Going on deeper conversations, meaningful conversations, Yeah. doing work which is more focused, Yeah. which is more uncentric. तो वैसे मुझे लगता है कि साइकोलॉजी की तरफ मेरा जो रिश्ता था वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से फाइनली लिव इन पे आया एंड नाउ वी आर मैरिड. So good. I like how you use analogy. I like analogies a lot. It's like every time someone asks me to introduce myself, I put an analogy and I sort that thing out. कितनी अच्छी बात भी पता है. अब चूंकि डॉक्टर सलमान अख्तर की बात की और बड़े भाई की बात न करो, जावेद अख्तर की तो बुरा लगेगा, लेकिन मुझे बुरा लगेगा, उन्हें तो क्या ही फर्क पड़ेगा. जावेद अख्तर अपनी एक गज़ल में लिखते हैं एक शेर अनोखा. ढलता सूरज, फैला जंगल, रास्ता दो, हमसे पूछो कैसा आलम होता है. What is it represent? कभी आपने सोचा है एक इंसान को ऐसा लग रहा हो कि वक्त कहाँ है, वक्त गुजरता न रहे, Correct. कुछ समझ गया है, कोई राह नहीं मिट रही, और साथ ही साथ दुनिया की सारी चीज़ें आसपास की ओवरवेल कर रही. इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कितनी क्लियरली उन्होंने एनालॉजी दे दी. ढलता सूरज, फैला जंगल, रास्ता को, Yeah. हमसे पूछो कैसा आ रहा. तो एनालॉजी ये बेस्ट तरीका समझाने का अपने मन की बात. Yeah. इवन जब जब गीता में कृष्ण से अर्जुन कोई सवाल पूछता है तो कृष्ण उसका जवाब जो है एनालॉजी में देता है. जैसे वो एक बार पूछता है कि मुझे अपने आप को कैसे मैनेज करना चाहिए. अर्जुन कृष्ण से वो समझती कृष्ण बताइए आप. कृष्ण कहते हैं यदा संहर्ते चायं कुर्मुंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है, यानी उसका माइंड बैलेंस रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, जो कि अपने इंद्रियों को यानी सेंसरी इनपुट्स को वैसे ही रेगुलेट करता है जैसे एक कछुआ अपने अंग अंदर समेट के रखता है, जब जरूरत पड़ती है तभी बाहर निकालता है. Beautiful analogy again. Yeah. Yeah. But by the way, how do you use that analogy to explain or express yours? Oh, actually, I consider myself as white color. So why white color? Because when you blend white color with any dark color or any different brighter colors, so it makes those colors more soothing to the eyes. Wow. And it always blends well. Like unlike black, which which overshadows other colors, it blends well and makes everything beautiful. So that's where I come in. I delegate to the conversation. I make everything beautiful. I
aim to add value in all the conversations. Now I also vouch for it. Thank you so much. Also, sir, I want to know from you, how do you remember all different, Bhagavad Gita, different shairis, and you even know how to put them, how to use them in the right, right time at right position. So I want to know, what did you do? Like, did you rehearse? Did you learn it every day, or did you read it once and then you remember it lifelong? Well, I think मैं इसका जवाब ऐसे देना चाहूँगा. एज अ साइकोलॉजिस्ट समृद्धि, आज तक मेरे पास कोई इसलिए नहीं आया कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो उसको याद नहीं आया. लोग मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो वो भूल नहीं. ह्यूमन ब्रेन इज़ वायर्ड टू रिमेंबर. हम लोगों को आज तक वो गुड्डा याद है जो बचपन में उनसे छीन के छोटी बहन को दे दिया गया था. करेक्ट. ये क्यों होता है? हर वो एक्सपीरियंस जिसमें आप अपने आप को इमर्स करते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको याद रहता है. पॉइंट. मेरे हिसाब से मुझे जो भी कुछ याद है, जितना भी कुछ, वो इसके लिए याद है क्योंकि एक आदत, आई वोंट से इट्स अ टैलेंट, आई थिंक आई हैव वर्कड हार्ड टू डेवलप इट. इट्स अ हैबिट कि मैं जिस एक्सपीरियंस में जाता हूँ उसमें पूरी तरह इमर्स होने की कोशिश करता हूँ. एंड आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय लीडर्स. अगर आप इमर्स हो जाए उस एक्सपीरियंस में, तो उस एक्सपीरियंस को बुलाना मुश्किल है. करेक्ट. मुझे लगता है अधिकतर लोगों को जो कहते हैं उनकी मेमोरी कमज़ोर है, उनका ऑब्जर्वेशन कमज़ोर है. वो लोग जो कहते हैं उनका रिट्रीवल ऑफ एनीथिंग इज कॉम्प्रोमाइज्ड, दरअसल उनका इमर्जन कमज़ोर है. तो टोटली इमर्स अगर आप रहोगे किसी भी एक्सपीरियंस में, तो अपने आप की चीज़ें याद आती हैं. ब्रेन को तो आदत. या ऑल्सो जैसे आपने बोला आप इमर्स होते हैं, सो कैन यू टेल मी द प्रोसेस, हाउ डू यू लाइक get into it? Because I'm trying to break down as much as possible, Saki, because I think everything in the world has systems, has processes. So if we crack down those processes, everyone can be at the same position. Beautifully. So I want to know those systems, or how do you immerse yourself there? I think सिस्टम और हैबिट में एक फ़र्क है. सिस्टम बनाए जाते हैं हैबिट्स डालने के लिए. Correct. और जब हैबिट्स डल जाती हैं तो आप सिस्टम हटा भी लो तो भी हैबिट बनी रहती है. Correct. दुनिया के कई देश हैं जहाँ पर रात को अगर कोई जानवर क्रॉस नहीं भी कर सकता है या वहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं भी है, तो भी अगर वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है तो इंसान वो रुक जाता है. क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो हैबिट जो सिस्टम के जरिए डालेगी. मेरा ऐसा मानना है कि मेरे पास अब कोई सिस्टम नहीं है ये करने का. मेरे पास अब हैबिट है, एंड हैबिट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सिस्टम. अब सिस्टम जब रहा होगा, अब मैं उसको याद करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आज तो नहीं है सिस्टम, आज तो हैबिट. वो सिस्टम मुझे ऐसा था कि एक बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी से आता है. द काइंड ऑफ पीपल यू मीट, द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, द काइंड ऑफ थॉट्स यू लिसन टू, एंड द काइंड ऑफ कंपनी यू कीप डिसाइड द काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम. आप जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के ख्याल सुनते हैं और जिस तरह के दोस्त चुनते हैं, वो तय करता है कि आप किस तरह के शख्स बनते हैं. मुझे लगता है मैंने ये चारों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पिछले 15 साल में बहुत रेगुलेट करना शुरू कर दी थी. और वो रेगुलेशन जो है मुझे समृद्धि बेहद काम है. जैसे कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनको मैं अवॉइड करता हूँ, बस अवॉइड. हाँ, उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं होगा. कुछ ज़िंदगी में ख्याल हैं जिनको मैं बस नहीं सुनता, जैसे मैं व्हाट्सएप पे. हाँ, मैंने आपसे पूछने वाली थी. तो मेरी जो व्हाट्सएप की नीड है, प्रोफेशनल नीड है जो व्हाट्सएप की, वो माय काइंड टीम मेंबर, शी इज मैनेजिंग इट, सो थैंक्स टू हर. मेरी पर्सनल नीड्स जो है व्हाट्सएप की, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनमें से कुछ जो हैं उस नीड को संभाल लेते हैं, थैंक्स टू देम. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरी व्हाट्सएप पे ना होने की जो जिद है वो एक ही बात की है. वो ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी डिसाइड होती है आपके आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा 5-8 लोगों के साथ आपके रिश्ते क्योंकि हैं उस पर. दूसरा, लोग मुझे वैसे भी इसलिए नहीं बुलाते या लोग मुझसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में कम ना. वो मुझसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा. पॉइंट. And specialization is to know more and more about less and less. Yeah. मेरा ऐसा मानना है
कि मैंने अपनी ज़िंदगी में व्हाट्सएप पे ना होना, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे होना, फिर हट जाना, एक किताब को पढ़ते रहना, मन ना करे तो भी पढ़ते रहना, आखिरी तक पढ़ना, अपनी ज़िंदगी में टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन टाइम, प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस बनाना। शायद ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो एक वक्त पे पिछले 15 साल से प्रोग्रेसिवली, इंक्रीमेंटली, ग्रेजुअली अप्लाई किए, डिप्लॉय किए, उसके बाद ये हैबिट विकसित होना शुरू। बट आई एम जस्ट वन बैड डे अवे फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस हैबिट, or probably one bad year, away from destroying all these habits. Why? क्योंकि है तो वो 96% ब्रेन ना, और ये तो 4% है। अब ये 4% तो ऐसा है कि आपने पागल हाथी पे एक 8 साल का जो है वो बंदा बिठा दिया, बच्चा बेचारा महावत, और उसके हाथ में अंकुश दे दिया, और उससे क्या होता है जब हाथी पगलाएगा तब तो बेचारा 8 साल महावत क्या ही करे। ये ऐसा लगता है कि आपको फिर वहां पर वही उसी लाइन पे वापस आना पड़ता है। सो ग्रैंडपा, हु विंस? Son, the one you... Yeah. So, sir, मुझे आपसे क्वेश्चन, like you told me about the bad year. So, I'm telling you my story. So, this past year in 2024 or 2023, I was very productive. Like, I cannot, if I could rate it out of 5, तो मैं 10 out of 5 productive थी. But this year, I don't know, I'd wake up within more time. I don't know how this happened, like, because of health issues but I'm constantly trying to rebuild my habits because I know this is wrong. And when I know that's wrong and then I'm doing it, it makes me angry on myself for not doing that. For example, I very well know that my brain works best when I wake up at 3. I study for 3 hours. उस टाइम पे 3 घंटे आई डू द रीड वर्क। मुझे उस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन, इससे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। बट आई ट्राई टू वेक अप एट 3 एवरी डे। आई पुट माई अलार्म्स ऑन बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू वेक अप। और इफ़ आई वेक अप फॉर 1 डे, मेरी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती धीरे धीरे। एंड इन द पास्ट ईयर I woke up at 3 every single day for 365 days, not leaving even a day. I don't know what happened and what emotional setting I am in currently, but it will be like, it will be a blessing for me if you help me figure this out. My God, that is such an intriguing, proposition that you have discussed. Well, I think until and unless I diagnose, I cannot prescribe. Yeah. तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हों। क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे इंटरनल नर्वस सिस्टम से लेके एक्सटर्नल इकोसिस्टम तक इतने सारे फैक्टर्स आर एट प्ले कि उनकी ओवरऑल समझ के बिना शायद मैं आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प फिगर दिस आउट। पर वन थिंग इज फॉर श्योर, अभी जो आप महसूस कर रहे हैं ना अपने प्रोडक्टिव डेज में, उसे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है निहाय चिक्सिन-नेहाय, अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर नाउ, पर निहाय चिक्सिन-नेहाय जो है उनका एक कॉन्सेप्ट है, वो है फ्लो। तो जब आपकी जिंदगी में फ्लो आता है समृद्धि, और फ्लो का अपना एक सेडक्टिव मोमेंटम है, आप उस फ्लो में ऐसे बहते जाते हो कि फिर ऐसा लगता है कि आप हो ही नहीं, सिर्फ एक बहुत बहाव है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रवाह है। और जैसे कि वो लाइन है ना जो हमारे उपनिषद से आई है और कैटी पेरी की वो है टैटू है, अनुगच्छतु प्रवाह में, जस्ट गो विद द फ्लो। तो वो जो है वो फ्लो आप इस वक्त महसूस कर रहे हो। और वो फ्लो कब आता है? जब आप अपनी स्किल्स और चैलेंजेस को इन टेंडम प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे बढ़ाते जाते हो। सो आई एम श्योर एट द रूट ऑफ व्हाट यू सेड देयर इज फ्लो। अब ये फ्लो कहाँ से आया, ये पहले क्यों नहीं था, ये क्यों कभी चला जाता है, क्यों कभी आ जाता है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पर वन थिंग इज फॉर श्योर, इट इज फ्लो। I am so glad you are enjoying that flow, because most of the people who are watching your podcast, they're struggling with only one word, lack of flow. अगर वो फ्लो ले आए ना, उसके बाद तो यकीन मानो जिंदगी इतनी खुशनुमा, इतनी खूबसूरत लगती है कि क्या। The past year I felt so sorted, everything was going so well. क्या बात है। इस पे ना निगाह फाजली की बड़ी खूबसूरत लाइन है, सॉरी मैं बीच में टोक गया।
शायद आपने वो गाना सुना हो, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ के लगता है तेरी महफिल है। उसका एक बड़ी खूबसूरत अंतरा है। सुनना वो लाइन कितनी वो सूरत है। ये वादियाँ, ये हवाएं, ये रास्ते, ये खुदा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। तो हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने से, शायद दैट्स व्हाई यू फील सो सॉर्टेड। Exactly. नहीं, at first so sorted. अभी I'm तो mess. ये बात जब भी वो फ्लो अभी टूटा क्यों है, इसका मेरे वाले सेशन के बाद, इसके बाद एक सेशन रखते हैं। पक्का for sure. बिकॉज पता है क्या होता है, देयर इज नो रेडीमेड सॉल्यूशन टू मैथ प्रॉब्लम। Yeah. कई बार जब लोग मुझे कहते हैं कि जनरेट एडवाइस दे दो कुछ, तो मैं दे तो देता हूँ, पर मेरा मन बड़ा दुखता है। Yeah. क्यों? तो मालूम है, यह एक शख्स जो है वो अपनी परिवेश, अपना परिवार, अपनी परिस्थिति, अपनी परवरिश, इन सब का कॉम्बिनेशन। अब चूंकि किसी की भी ये सेम नहीं हो सकती, इवन जैसा कि डॉक्टर सलमान तक कहते हैं, नो टू सिबलिंग्स आर एवर बॉर्न इन द सेम फैमिली। क्योंकि जब पहला बच्चा पैदा हुआ, मान लो 2 बच्चे, पहला बच्चा पैदा हुआ तब 2 लोग थे, माँ बाप थे। अब जो दूसरा हुआ तो उसको तो रेडीमेड 3 मिला। तो फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन जो है बदल गया। तो आई genuinely think that probably will catch up after this. पक्का। Also, I want to know from you, जैसे कि आपने ये फ्लो स्टेट की बात की, so मतलब मुझे ये जानना है अबाउट फ्लो स्टेट और जैसे कि ये जितने भी हैबिट्स हम कर रहे हैं, जो भी इमोशन है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आई फील there's a part of brain called amygdala, if I'm not wrong, जहाँ से fear आता हो. So sometimes I feel all the emotions when I sit down and journal. I feel all the emotions are somewhere connected with fear. If I'm tell me if I'm wrong, मुझे मतलब जैसे कि I'm giving you an example, जैसे कि podcast went really well, but then again thinking about the next podcast, thinking about the next ladder, there's a fear inside me that अगर वो और अच्छा होना चाहिए, वो और अच्छा होना चाहिए. So you constantly try to push yourself up because of the fear of not losing the quality or the quantity. So all the emotions are somewhere connected to fear. Sumiti, I think it's a very valid point, no doubt about that. हमारे 7 यूनिवर्सल इमोशंस होते हैं, सारे एनिमल्स तो पाए जाते हैं, इनको बेसिक इमोशंस कहा जाता है. फियर, एंगर, कंटेम्प्ट, डिस्गस्ट, सैडनेस, हैप्पीनेस और कुछ लोग मानते हैं सरप्राइज. तो ये 7 इमोशंस हमारे फंडामेंटल इमोशंस. Understood. अब ये जो फंडामेंटल इमोशंस हैं, हमारी सारे एक्शंस गवर्न तो ये करते हैं. और फियर जो है वो चूंकि एक तरह का ऐसा मानो कि ये हुक्म का है, हाँ. इन सम वेज ट्रम्प कार्ड. तो जब फियर जाता है तो वो सारे रिसोर्सेस सोख लेता है, वो सारे अटेंशनल सेंसरी इनपुट जो है वो उनको काम पे लगा देता है और सब कुछ जो है वो फियर के राज में आ जाता है. इन सम वर्ड जैसे जिसको लोग कहते हैं एमिगडाला हाईजैक. एमिगडाला जो है वो छोटा सा पार्ट है बादाम के, उसका साइज का ऑलमोस्ट. हमारे 2 है वो एमिगडाले, एक इधर है एक इधर. अच्छा, आई डोंट नो. हाँ, तो हमारे सब कुछ सेकता है, एक इधर एक उधर, एक इधर उधर. तो ये जो एमिगडाला है ये सिर्फ फियर का ही, फियर का, एंगर का, ये वो किसी भी तरह का पार्ट है जिसमें इमोशनल सेंटिनल का रोल उसको प्ले करना है. अच्छा. ये वॉच डॉग है, ये कॉन्शियस कीपर, ये टेल ट्विस्टर, ये विसल ब्लोअर. तो एमिगडाला बहुत कुछ है. इनफैक्ट एक न्यूरो साइंटिस्ट है, वो मेरे फेवरेट्स में से एक है, उनका नाम है जोसेफ लेडू. उनकी जिंदगी का पूरा काम, पूरी जिंदगी का काम एमिगडाला पे है. It's just amazing. Just imagine, मतलब it's a dream come true कि आप एक इतना सा हिस्सा लें और उसको पूरी जिंदगी बिता दें. Exactly. Then he is an authority on that. Yeah. तो अब वापस आए कि क्या fear is at the base of it? नहीं, सारे इमोशंस जो 6-7 हैं वो सारे इसके बेस पे हैं, लेकिन fear सबसे ज्यादा strong. Okay. Now coming to second part of your question. अगर मुझे second part एक बार आसान क्लियर
तरह से पूछोगे सवाल की तरह तो मैं ज़्यादा आसान दे पाऊंगा जवाब उसका। तो सेकंड पार्ट क्या था जो आपको बॉदर कर रहा था जब आप अपनी मम्मी से डांट पड़ेगी, वो वाली फीलिंग जो है वो आप बोल रहे थे, या क्वालिटी ऑफ पॉडकास्ट की फीलिंग की बात कर रहे हैं? So I was telling two different situations जिसमें एक में मैं I was trying to escape the averse situation और एक था जिसमें I was trying to escape the averse situation in a good situation. So मतलब कि I was late for the temple and my mother's very strict about timing and she's always put us in our way कि strictness होनी चाहिए, productivity होनी चाहिए, time management should be good. So even if I get late for 5-10 minutes तो फिर मेरी पूरी heartbeat बढ़ जाती है. So and I think that's one of the biggest contribution my mother gave to me. So respect that. But again हम काफ़ी डरते रही उस चीज़ से. So and I was almost on the verge of fear and terrified कि क्या होगा. And I'm very emotional, so I cry for everything. That was good. That's how you a healthy person. Thank you. That's a compliment. So वही बस मैं उस चीज़ के लिए I had tears in my eyes. And at the same time एक हम दूसरा situation ले रहे हैं जहाँ पे I did a really good podcast and उसके बाद I had 3 podcasts lined up. So at that point of time when I was I was happy but I had fear inside me कि अब जो आगे 3 podcasts आने वाले हैं, how will they be, how will this perform and stocks like that. Great. So both these situations have fear on the base of it, and they even though happiness was majorly dominating, but at the same time fear was there. Yes. So that was my question कि हर एस्पेक्ट में हम फियर एक ले सकते हैं. स्मृति, जो आपने महसूस किया ना वो फियर फैमिली के अलग अलग इमोशंस और फीलिंग्स थे. अच्छा. क्या होता है फियर फैमिली जो है वो सिर्फ फियर हुई, उसमें स्ट्रेस भी है, उसमें एंजाइटी भी है, उसमें एंग्स्ट भी है, उसमें बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स. इमोशंस और फीलिंग्स का फर्क है. इमोशंस जो है वो कॉमन है सब में, जानवरों में, हम सब में. फीलिंग्स आर एब्स्ट्रैक्शंस, वो इमोशन से अलग है. जैसे गिल्ट जो है वो गिल्ट एक फीलिंग है, गिल्ट एक इमोशन नहीं है ना. जैसे रिग्रेट एक फीलिंग है. समझी. सो अगर गिल्ट इमोशन नहीं है, सो व्हाई इज इट नॉट इमोशन? बिकॉज एनिमल्स डोंट फील दिस. बिकॉज इमोशन इज एनर्जी मोबिलाइजेशन. सो ऑल दोस फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशंस जिनका हमारी फिजियोलॉजी से कनेक्शन है उनको इमोशंस कहेंगे. जिनका हमारी फिजियोलॉजी से रिलेशन नहीं है, साइकोलॉजी से रिलेशन है, उनको फीलिंग्स कहेंगे. Understood. Really great. जैसे गुस्से में खून हाथों की तरफ दौड़ता है तो एनर्जी मोबिलाइज हो रही है, तो दिस इज एनर्जी मोबिलाइजेशन. तो ये क्या हो गया? इमोशन. डर में खून पैरों की तरफ दौड़ता है क्योंकि हमको भागना है ना, तो जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं कई बार. तो ये जो इमोशंस है ये इमोशंस क्या है? क्योंकि इनके अंदर एनर्जी मोबिलाइज हो रही है. पर जहां तक फीलिंग्स का सवाल है, फीलिंग्स जो है वो हैं जो कि जिनमें हमारी बॉडी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही है. जैसे गिल्ट हो रहा है किसको महसूस, तो गिल्ट सैडनेस की फैमिली का फीलिंग है. लेकिन सैडनेस इज इमोशन. तो सैडनेस में हमारी एनर्जी डंप हो जाती है. तो डॉग्स आर आल्सो सैड, हॉर्सेस आर आल्सो सैड. आप बता सकते हो ये सैड है, मैं सैड हूँ, आप सैड. तो ये अलग है. तो जहाँ एनर्जी मोबिलाइज हो रही है, जहाँ फिजियोलॉजी इन्वॉल्व है वो इमोशन है. जहाँ सिर्फ साइकोलॉजी इन्वॉल्व है और सेकेंड हैंड फिजियोलॉजी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो जिस फैमिली से आती हैं उसके वेरी गुड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कमिंग बैक टू इट, स्ट्रेस. आप पहले स्ट्रेस महसूस कर रही थी. जब मम्मी से डांट पड़ेगी या मम्मी आप जो है वो कुछ कहेगी नहीं या बुरा मान गई या दुखी हो गई तो आपको स्ट्रेस आया. स्ट्रेस की खासियत क्या है? जब तक स्ट्रेसर रहेगा कब तक स्ट्रेस रहेगा. जैसे ही स्ट्रेसर खत्म हुआ स्ट्रेस, तो आप फियर महसूस नहीं कर रहे थे, वो है स्ट्रेस. क्योंकि वो जैसे ही आप पहुंच गई नॉर्मल हो गया तब आपका चला गया. जिसे आप महसूस कर रही थी कि भाई एक पॉडकास्ट अच्छा हुआ है, अगले अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, वो एंजाइटी, एंटिसिपेटरी एंजाइटी कहता है. Understood. तो वो एंजाइटी जो थी, एंजाइटी को लेके जो डेफिनेशन है वो है एंजाइटी इज फियर विदाउट फेस. पर ये भी एंजाइटी प्लस स्ट्रेस कॉम्बिनेशन था, क्योंकि फेस तो था, आपको बताया कि अगले पॉडकास्ट आपको करने हैं वो अच्छे होंगे या नहीं, उसकी एंटिसिपेट एंजाइटी थी. Understood. तो ये आप सही हैं, फियर फैमिली की ही फीलिंग्स हैं. लेकिन इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये दरअसल आपके बारे में कुछ पता था.
I think it tells more about your psychological makeup. Understood. For instance, आपकी जब में हो सकता है अगर आस्था होती तो आस्था को शायद इतना डर नहीं लगता. शायद आस्था कहती कि सन की हो जाएगा, ऐसा भी क्या है, कौन सा ये पॉडकास्ट अच्छा नहीं हुआ तो कौन सा मेरा नोबेल चूक गया, ऐसा तो था नहीं कि अगला ऑस्कर ही मिलने वाला था मेरा. Correct. ठीक है ना. या हो सकता है आस्था ये कहती यार मेरे को अपना बेस्ट देना है ना, कि योर बेस्ट फॉरगेट द रेस्ट, फिर बाकी जो है वो की फर्क पहनदा गुलाब हो या क्या होगा ऐसे वाल पे. अब ये बड़ा अजीब है. ये साइकोलॉजिकल मेकअप जो है आस्था का अलग है और समृद्धि का अलग है, बहुत संदीप का अलग हो सकता है. अब संदीप की जब संदीप की तरह बिहेव करेगा तो अलग होगा, डॉक्टर संदीप अत्रे डॉक्टर अत्रे की तरह बिहेव करेगा तो अलग करेगा. कई बार आप जो है वो अपने प्रोफेशनल रोल में अलग करेंगी, पर्सनल रोल में अलग कर लेंगे. हो सकता है मम्मी से डरने वाली जो है वो बॉस के सामने असर्टनली चीजें कहा करे, यू नेवर नो. या हो सकता है मम्मी से डरने वाली बॉस के सामने भी सब में से हो जाए, हमें कुछ नहीं पता. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, योर साइकोलॉजिकल मेकअप इज ड्राइविंग ऑल दीज एक्सपीरियंसेस एंड इन्फ्लुएंसेस. तो इसे हम टिपिकली जिसको साइकोलॉजी में साइकोथेरेपी में कहते हैं ये स्कीमास है. ये वो स्कीमास है जिसकी वजह से आपके सारे एक्सपीरियंसेस फिल्टर होके उस स्कीमा से आपका फीलिंग का लैंडस्केप तय करता है. Understood. जिसको एक बहुत बड़े थेरेपिस्ट रहे हैं अल्बर्ट एलिस, उनकी बड़ी CBT उनका काम है, कॉग्निटिव और बिहेवियर जो थेरेपी है वो. तो वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है वो ये है कि आप जो है वो बिलीव्स आपके जो हैं वो सारे इवेंट्स उन बिलीफ से छन के आपके कॉग्निशन तक पहुंच रहे हैं. Correct. तो कोई रैशनल बिलीफ की कमी या इरैशनल बिलीफ की प्रेजेंस जो है वो ये सब ड्राइव कर रही है. उस बिलीफ को चैलेंज कीजिए और वो जब ठीक हो जाएगा तो आप ठीक महसूस करिए. So again a question. If I want to, अभी मान लेते हैं मेरा साइकोलॉजिकल मेकअप ऐसा है that I'm very fearful. So मैं ही इसमें So not fearful, contextually fearful, more in some experiences and contexts, Okay. less in some other. Understood. Okay. हाँ, because I'm a very gifted person when I am given the platform of leadership. So उस समय I would मुझे डर नहीं कोई डर नहीं है. Yeah, exactly. मेरा मानना है इसमें एक और चीज है. जैसे अभी इसी वाले पॉडकास्ट तो ले लो, आप लेट हुई थोड़ा सा Yeah. और आप उनसे 3 बार माफी मांग चुके हैं जो कि लॉजिकल है नहीं, क्योंकि आपने मुझे पहले ही कहा था कि आप लेट होने वाली हैं तो आपने कम्युनिकेट भी किया था. Yeah. आपने मुझे जब वहां से निकली और कहा कि मैं यहाँ अब तक पहुंचूंगी तो मैं भी उसी वक्त आया था, 2 मिनट बाद ही आप आ गई. लेकिन आप क्या हुआ है, आप अथॉरिटी फिगर्स, स्पेसिफिकली पेरेंटल फिगर्स, मैं शायद आपके पेरेंट भी है इसका ऑलमोस्ट, या हो सकता है थोड़ा बड़ा ही है, तो ये काट दीजिएगा लाइन, जस्ट जोकिंग. सो पॉइंट इज कि वो पेरेंटल फिगर्स अथॉरिटी फिगर्स की तरफ उन्हें लेट डाउन न करने की जो इच्छा है ना, Correct. वो ड्राइव कर रही है. So correct. आई एम अ गुड साइकोलॉजिस्ट. Yeah, very good actually. तो मुझे लगता है सबके साथ में होगा. हाँ. जिनमें भी आपको पेरेंटल फिगर दिखेगा वहां पर आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, इंट्रा साइकिक प्रेशर अपने आप क्रिएट होना शुरू. Correct. So correct. Like I'm still in awe. How can someone be so correct about my behavior? Psychologist. Yeah. So I'll take a minute actually. I'm still thinking and processing. How do you know so much? Like you pinpointed the exact thing actually. Really. बिहेवियर जो है ना, ह्यूमन बिहेवियर इतना इंट्रीगिंग है. Actually it is. मतलब क्या होता है, एक तो अधिकतर लोग ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली समझना नहीं चाहते. Point. वो ना हर एक चीज का बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से जो है वो उसका शोध वो करना चाहिए, इस तरह से कहना चाहता. जबकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि शोध के बिना बोध नहीं हो सकता. Correct. और मैं और भी 2 लाइन्स कहता हूँ कि जिस ज्ञान के पीछे विज्ञान नहीं हो उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए. Wow. और जिस विचार को आचार में न लाया गया उसका प्रचार नहीं करना चाहिए. Correct. सो मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिफिकली अगर समझा जाए समृद्धि, और मेरा इसी ये मानना है कि साइकोलॉजी जो है वो हर एक डोमेन में लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए.
करेक्ट सर। और एक टाइम पे जैसे फैमिली डॉक्टर्स हुआ करते थे ना, मुझे लगता है आने वाले वक्त में फैमिली साइकोलॉजिस्ट हो, क्योंकि फैमिली साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो परिवारों की जो होमियोस्टेसिस है, जो उनकी नॉर्मल बैलेंस्ड स्टेट है, उसको जाने में बहुत बड़ा रोल है भाई। जस्ट अ सेकंड, आपने होम्योस्टैटिस बोला, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल होम्योस्टैटिस होमियोस्टेसिस जो हमारी बॉडी का एक टेंडेंसी है टू कम बैक टू द सेम बैलेंस्ड स्टेट। जैसे जब आपको गर्मी लगती है तो पसीना आता है, क्योंकि बॉडी जो है वो कोशिश कर रही है अपनी हर चीज को वापस बैलेंस कर। तो फैमिली में कैसे ही होता है, और उसके लिए मेरा मानना है कि जैसा आपने कहा साइकोलॉजिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जैसे यही वाला आपका बिहेवियर है, अगर ये पेरेंटल प्रेजेंस की तरफ आपका बिहेवियर ऐसा रहा, पेरेंटल किलर्स की तरफ, तो वे यू गेट मैरिड इफ यू डिसाइड टू कोर्स, एंड प्रॉब्ली जस्ट इमेजिन यू हैव अ मदर इन लॉ जिसकी तरफ आपकी श्रद्धा और आस्था तो ऐसी ही रही, लेकिन उनकी आपकी तरफ भावना वैसी नहीं। शायद वो आपको उस तरह से नहीं देखती हैं जिस तरह से आपकी माँ देखती हैं, पर आप उन्हें उस तरह से ही देखती हैं जैसे आप अपनी माँ को देखती हैं। अब यहाँ जो टकराव आएगा दो अलग अलग स्कीमास का, उसकी वजह से फैमिली में एक तरह का डिसरप्शन क्रिएट होगा, होमियोस्टेसिस बिगड़ेगा। ऐसी चीजों के लिए मुझे अभी भी लगता है कि आगे पीछे फैमिली साइकोलॉजिस्ट एंड होने भी चाहिए। होने चाहिए। Yeah, and because it's very important to, you know, the more the world is, you know, growing and increasing, the technology and everything, the pace that we are catching up with, I think उस pace के साथ we need psychologists as well. Yes, और फिर हमारा सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे डिसमेंटल होता जा रहा है। Correct. अच्छा, होता क्या है, मामा और चाचा जो हैं वो कभी भी सच नहीं बोलते आपको, क्योंकि मामा चाचा का, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मामास चाचास, मामा चाचा जो है, चाचा की जो है वो सेम वो रहती है, यू नो शेयर्ड प्रॉपर्टी रहती है, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो आपको अपसेट कराए या आपके घर वालों को अपसेट कराए। मामा जो है वो भी एक तरह का मॉरल ऑब्लिगेशन महसूस करता है, वो भी कुछ नहीं कह पाते। हमारे यहाँ 3 कैरेक्टर्स थे जो कि अधिकतर सच बोलते थे, वो थे फूफा, मौसा और जीजा। ये वैसे भी बेचारे डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, है ना, इनकी वैल्यू वैसे भी कम हो गई। ये क्या कही, ये पहले ये फैमिली नाम के सर्कल में इन नहीं थे, आउट नहीं थे, ऑन थे, ये सरकमफ्रेंस पे थे, तो ये बड़ा सच बोला करते थे। पर होता क्या है, वो भी ना धीरे धीरे बायस्ड होने लगे, क्योंकि अगर मौसा जी को साड़ू पसंद नहीं है उनके, तो वो कुछ तो भी बोल देते हैं, है ना। सो माई फॉल्ट इज कि ये फूफा, ये मौसा, ये जीजा, ये मामा, ये चाचा, एक वक्त पे ये सब हमारे सोशल फैब्रिक में बहुत बड़ा रोल निभाते थे, क्योंकि ये हमारी फैमिली के उस होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए वक्त वक्त पे इंटरचेक्ट करते थे, इंटरवीन करते थे। करेक्ट। और चूंकि अब धीरे धीरे ये रिश्ते गायब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है आने वाले वक्त में साइकोलॉजिस्ट वो जरूरी होंगे, और फिर वो साइंटिफिकली देखते हैं तो शायद ज़्यादा उनको कर पाते हैं। पॉइंट। सो सर, जैसे आपकी बुक में आपने बताया, you know, you decode all the emotions logically. So can you give me an example of how we can decode an emotion? Like अभी तो हमने मेरा decode किया, but I want to know more. Like I want to know an inference or एक कोई example जो आपके किसी client में से हो, if you can share. So मुझे एक ऐसा बताइए जिससे I can figure this out. Okay, you extracted this thing and now you got to know कि okay, इससे मैंने ये inference निकाला and how this is how I decoded this emotion logically. Can you give me an example? I would love to, but I think Samriti that will be a reductionist approach. क्योंकि मैं भले ही एनोनिमिटी रखते हुए कॉन्फिडेंशियलिटी में क्लाइंट्स के नाम चेंज करके वो केस भले ही डिस्कस कर लो, लेकिन इट विल बी रिडक्शनिस्ट अप्रोच। वाई समृति? क्योंकि अगर मैंने बताया इस तरह का, तो मैं दरअसल 10, 12, 15 सेशन में जो धीरे धीरे हुआ है उसको सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरी टेलिंग मैं क्या करूंगा, मैं उसको ऐसे सुनाऊंगा कि वो सेंसेशनलाइज्ड लगे। तो मैं को अवॉइड करूंगा, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन मैं थोड़ा सा तो बताना चाहूंगा, बिकॉज अदरवाइज आई थिंक विल नॉट सर्व द पर्पस। और आप यूँ भी, मेरा मानना है कि ये सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं पूछ रही हैं, आप इसको अंडरस्टैंडिंग बेहतर करना पूछ रही हैं। सो आई गिव एन एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। अब आप ही सोचिए कि एक मदर, उनका जो बेटा है, उस बेटे को उन्होंने इस तरह से पाला है
जिस तरह से वो बेटा उनकी हर बात सुने। अब ये बेटा जब बड़ा होता था तो ये अपने हर फैसले के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस माँ को बनाता। करेक्ट। अब बात आती है शादी की। शादी के टाइम है जब ये बिहेवियर कंटिन्यूड रहता है, बिकॉज वट एवर यू पेइंग फॉर टेक्स रिपीटेड। करेक्ट। तो मेरी क्लाइंट है, अब वो क्लाइंट कौन है वो भी बताता। वो क्लाइंट ना तो ये माँ है और ना ही बेटा है, ओके। वो है बेटिंग बीड़ी। करेक्ट। तो वो मेरे सामने बैठी हुई है और वो मुझसे कहती है दूसरे तीसरे से, एक ऐसा मोमेंट ऑफ पॉज आता है जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं इनली कैसे यहाँ बहुत बोल रहा हूँ, वहाँ तो मेरे कम बहुत ही कम बोलता हूँ, जब बोलने का टाइम आता है तब बोलता हूँ। तो वो ऐसी बैठ रही है, मुझसे अचानक से कहती है, अजीब है ना सर, अपना बच्चा भी पालो और अपनी सास का। Just imagine. Just look at the irony. Even Asta could not stop laughing. Like actually against the color, I'm laughing. So just imagine, and we are laughing at it. उस टाइम मैं हंसा नहीं था क्योंकि we are in a different right now different set too. उस टाइम पे तो जो उसने ऐसा कहा, I cannot tell you how deeply I felt that. तो now I think now you get the point कि कैसे परवरिश ने एक रिश्ते को अफेक्ट कर दिया गोइंग अहेड। करेक्ट। क्योंकि अब इनके बच्चे भी जो है वो ये इसकी वजह से अफेक्ट हो गए। करेक्ट। करेक्ट। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि हर घर के अपने इश्यूज होते हैं। कुछ घर में दिखते हैं और कुछ घर में अगली जनरेशन को दिखते हैं। वेरी ग्रेट। को है और इसीलिए हमें सॉर्टेड बिहेवियर की वो भी बहुत ज्यादा। एक्चुअली और I hope I did justice to the question to some extent. यस एक्चुअली इतना सब कुछ cluttered है ऑलरेडी दैट द मोर वी गेट सॉर्टेड द मोर इट्स हेल्पफुल फॉर अस। हाउ डू आई गॉट टू नो दिस इन अ पॉडकास्ट कि हाउ डू बिलियनर्स डू, मतलब आई तो डिड दिस आउट ऑफ हैबिट। आई यूज टू चूज 2 clothes एवरी वीक एंड देन 2 कपड़ों में से ही एक कपड़े, एक दिन एक कपड़े, एक दिन एक कपड़े। 1 cloth for gym every week में, मतलब हर वीक पे एक ही कपड़ा जिम पे। आई वोंट चूज अनदर। My God. सो आई यूज टू लिव लाइक दिस। फिर मुझे पॉडकास्ट से पता चला कि दिस इज हाउ बिलियनर्स डू। दे यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। हाँ, Zuckerberg. मार्क ज़करबर्ग मेरे ख्याल में सेम रिटायर का अंतर। हाँ, मैंने फिर उसमें काफी रिसर्च की फिर कि इज दिस लाइक हाउ डज दिस वर्क एंड स्टफ। You use that very term, क्या बोल रही थी आप एलिमिनेशन वाले? द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। Yes, जिसको हम लोग कहते हैं डिसीजन फटीग जो है वो अवॉइड करना है। करेक्ट। यस। कि क्या कहने, क्या जाए, कहाँ रखें, ये करें वो करें, डिसीजन फटीग जो है वो। Actually, and now coming to actually I'm gonna dive deep into this more, but the most demanding thing and the most important thing along with emotions is also decoding how you conversate non-verbally. So tell me if someone's sitting in front of you and they feel very fine, they look very fine, but what are some of the body language की कुछ चीज़ें जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि शायद this person is not right, this person is not well, something like that. पहले तो समझती ये बहुत पॉप साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। देन लोग किसी के जेस्चर्स या पोस्चर्स या एक्सप्रेशन से उसकी इमोशनल स्टेट समझ सकते हैं। दिस इज अनट्रू। इट इज़ नॉट, अब बड़ी इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली बताता हूँ, इट इज़ नॉट अ जेस्चर, एक्सप्रेशन और पोस्चर दैट एक्सप्रेसेस अ पर्सन's इमोशनल स्टेट. It is the change in expression, gesture or posture. Very good point. So it is the change. You have to register the change. और वो जो चेंज है ना वो तभी रजिस्टर हो सकता है जब आप पहले बेस लाइन स्टैब्लिश कर। तो मैं किसी भी इंसान को अगर वो ऐसा कर रहा है बार बार तो मैं ये कह सकता हूँ झूठ बोल रहा है। Correct. है ना? Yeah. अगर कोई इंसान ऐसा बैठा है तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है।
Correct. ये तो बहुत ही Superficial. बहुत ही सुपरफिशियल बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखिए वाला स्टाइल है, विच इज पॉप साइकोलॉजी, जिसका साइंस से कोई बहुत ज्यादा रिश्ता नहीं है. तो when you look at any gesture, posture or expression in isolation, it becomes a very, again, reductionist approach wala tarif. Understood. As you were discussing my book, Observing Nonverbal Behavior, it may not be, available right now, but, हमारा जो पूरा e-learning course है on social and emotional intelligence, Yeah. उसमें observing non-verbal behavior का पूरा साइंटिफिकली कैसे उसे स्टडी, ऑब्जर्व, इंटरप्रेट करना चाहिए, उसके बारे में बात होती है. अब मैं अगर उस बारे में बात करूं तो उसका नाम ही सोशलिजेंस है, हमारी कंपनी का www.socialigens.net. अब ये जो सोशलिजेंस है वो सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म है. Yeah. अब सोशल इंटेलिजेंस क्या है? सोशल इंटेलिजेंस ये है कि मैं किसी के नॉन वर्बल बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, इंटरप्रेट करके अपना उस वक्त पर सबसे अच्छा स्टैंड या बिहेवियर चूज करो. Correct. एज सिंपल एज दैट. Yeah. पर इसके लिए पहले भी स्टैंड एस्टैब्लिश करके Yes. ये कैसे हो जाता है कि आपकी माँ आपसे फोन पे बात कर रही होती और फिर फोन रखने से पहले वो कहती है बेटा सब ठीक है. The instinct of mother. अब लोग कहते हैं कि ये तो मदर के इंस्टिंक्ट है. निदा फजली का शेर है, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठे गद्दार. पर ये कैसे हो गया? Yeah. मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ. माँ आपको इतने ध्यान से सुनती है कि उसको पता है कि आपकी पिच एग्जैक्टली यहाँ रहती है, आपकी टोन यहाँ चेंज होती है, आपका टिम्बर इधर चेंज होता है, आपका टेम्पो इधर चेंज होता है. उसको सब पता है. वॉल्यूम ऐसा होता है. Yeah. तो ये नॉन वर्बल बिहेवियर का हिस्सा है जिसको प्रोसोडिव फीचर्स कहता है. Understood. अब आपने फोन में बात और आपकी माँ बात करते करते अचानक से अपना सारा लेगेसी डेटा जो रहता है, पूरा डेटा मेरा तो चली रही है उसके इतने वर्षों से, तब से लेके अभी तक के सारे डेटा से एक पूरे टाइम कंपैरिजन चलता रहता है. वो कहती है आज ना समृद्धि की पिच यूजुअल पिच से इतनी नीचे थी, टेम्पो इतना नीचे था, और साथ ही साथ जो है वो टोन यहाँ पर चेंज जहाँ होनी थी हमारे. नाउ शील टेल मी, कुछ तो है, कुछ तो बताएंगी. Correct. फिर अब कहते नहीं मम्मी ये सभी ठीक है, एकदम बढ़िया है. और फिर वो इंडियन मॉम्स का राम बाण चलाती है. तुझे बताना पड़ेगा, तुझे मेरी उसका समय. I am telling you, this is the most beautiful, psychological tactic I have heard. By the way, उसके लिए भी एक psychological tactic है. हमारे यहाँ कसम उतारने के लिए कितने साइंटिफिक तरीका है. नीम की पत्ती उड़ते जाए तेरी कसम उतरती है, ऐसा कहे तो लोग मानते हुए उनकी कसम उतर गई है. दिस इज ब्रिलियंट. पर इसके पीछे का देखिए, अंधविश्वास के पीछे का भी एक विश्वास है. अब इसी को देखिए. माँ ने ये कहते कि तुझे मेरी कसम, आपका जो वो हिच था ना अंदर कि बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं, डायलेमा कि माँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मेरा न बोलना इंपॉर्टेंट है, उसकी द्वंद्व चल रहा था, डायलेमा चल रहा था. माँ ने कसम दे के वो डायलेमा क्या कर दिया, तोड़ दिया. अब आपका कि माँ बहुत याद आए, माँ सुबह उठती हूँ और तुम नहीं दिखती हो ना, पता नहीं, समझ नहीं आता, ऐसा लगता है इमोशनल एंकर ही गायब है मेरा. Correct. अब ये कैसे हो गया? ये नॉन वर्बल बिहेवियर स्टडी किया ना उसने. अब अगर मैं साइंटिफिकली स्टडी करती तो शायद और आसान होता था, क्योंकि तो वो अपनी बेटी नहीं, अपनी बहू की कभी समझ पाती. पर प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि वो लोग नॉन वर्बल बिहेवियर स्टडी नहीं कर रहे, तो अपनी बेटी की तो इंस्टिंक्टिवली समझ लेते हैं, बहू की नहीं समझते. पर वो उनकी बहू किसी की बेटी है, इसलिए वो अपनी माँ से बात करती थी, वो समझती है. इसीलिए सारी प्रॉब्लम है. Point. Yeah. काश हम ज्यादा अवेयर थे, काश हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड होते. नॉलेज लिबरेट्स. Actually. और हमने ज्यादातर लोग ये चीज नहीं करते. नो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल कि विभीषण जो है, विभीषण राम से मिलने आता है. तो वाल्मीकि रामायण में विभीषण जब राम से मिलने आता है
वो उस वक्त पे जब युद्ध चल रहा होता है, युद्ध के पहले उस सब वाला जो पॉइंट रहता है, युद्ध होने वाला सबको, तो हनुमान जी से राम जी पूछते हैं कि विभीषण आ तो रहे हैं, पर मैं ये कैसे पता लगाऊंगा, मैं अपने वर्ड्स में बोल रहा हूँ, फॉर्स वर्ड्स कैसे पता लगाऊंगा कि ऑथेंटिसिटी उनकी बात की कितनी। तो देखो राम जी कितने सहज हैं कि उन्होंने हनुमान जी से गाइडेंस ले ली। हनुमान जी कहते हैं ना कि आप तो उनके हाव भाव ध्यान से देखिए, समझ में आ जाए। तो नॉन वर्बल बिहेवियर का स्टडी उस टाइम से इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग कितनी खूबसूरत बात है। तो मुझे लगता है हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल आ देता, पॉल एकमैन जो कि बहुत बड़ा नाम है नॉन वर्बल बिहेवियर, स्पेसिफिकली फेशियल एक्सप्रेशंस के उसमें डोमेन में, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। हम लोग अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि एक गुस्से में लाल चेहरा जो है किसी का, आप उससे बच के रहोगे कि नहीं समृद्धि? गुस्से में लाल चेहरा है आज का, बताओ रहोगे कि नहीं उससे बच के? ऐसा नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा, गुस्से में लाल चेहरा जो है उससे बचना नहीं है, आपको उससे बचना है जिसमें गुस्से में उसका चेहरा सफेद या पेल है। उसका रीजन, भाई जब गुस्से में एक आदमी, तो उसका पूरा खून बॉडी का किस तरफ दौड़ेगा? हाथों की तरफ, क्योंकि अब हाथों से मारना है ना, फाइट। जब खून हाथों की तरफ जा रहा है पूरा, तो ब्लड सब जगह जाएगा, तो फेस से भी चला जाएगा, तो फेस क्या हो जाएगा? फेस पेल हो जाएगा। तो फेस पेल है मतलब पूरा खून किधर है? हाथों पे, हाथों की तरफ है। तो ये आपको ज्यादा मार सकते हैं, इसके चांसेस है कि आपको पकड़ के मारेगा। अगर उसने अपना गुस्से का पीक क्रॉस कर दिया, तो वो खून वापस लौटेगा जहां जाए जरूरी, तो वापस जब फेस पे लौटेगा तो फ्लश होगा फेस, तो ब्लड वापस आया है, इसका मतलब गुस्से का पीक क्रॉस हो गया है। करेक्ट। ओह वाओ, ग्रेट पॉइंट। आप समझ नहीं? हाँ एक्चुअली आज किसको ना नॉन वर्बल बिहेवियर को प्री वर्बल बिहेवियर कहा जाता है। आज हमारे लफ्जों से पहले आ गया था। ओह देखो आज भी छोटा बच्चा, उसका नाम रखते थे चिंटू, पिंटू, बंटी, पिंकी, मुन्नू, गोरखनाथ, गुड्डू, तुम्हारी इच्छा। लेकिन आज चिंटू जब बैठा रहता है और उसके मम्मी या पापा या दीदी या भैया है जो भी कुछ है, या जीजू या जो भी कुछ है, आई लव दिस टर्म जीजू, कहाँ से आया, दिस इज सो गुड, जीजा लुक सो डिस्टिंक्ट, जीजू। सो अब जो भी है, अब वो चिंटू वहां बैठा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, आप उसको चिंटू कुछ कर रहा है, बैठेगा तो नहीं चुपचाप, वो कुछ हरकत तो करेगा, है ना? अब वो कुछ हरकत कर रहा है, आप जाके बोले चिंटू नहीं, चिंटू मत करो, तो चिंटू सुनता ही नहीं। He gives a damn. चिंटू is going ahead with his own जो भी प्लान्स है उसको करेगा। वो आप फिर चिल्लाते चिंटू नहीं करो प्लीज, वो भी चल रहा है। हाँ थोड़ा दोस्त चिल्ला, तो चिंटू चिंटू मत करो। अब क्या होता है, थोड़ा वॉल्यूम चेंज हुआ है, अब की बार चिंटू करना बंद कर देता है, ऐसा नहीं होता है। चिंटू करता रहता है पर आपका चेहरा देखता है, और देखते देखते कर रहा होता है, और फिर वो आप एक और बार कहते हैं चिंटू, तो भी वो कर रहा होता है, और फिर वो एक मोमेंट आता है जब चिंटू समझ में आता है कि नाउ ही रियली मीन्स है। कब अगर नहीं करा छोड़ा तो ये सटक जाएगा। करेक्ट। अब इसकी जो है वो इसका नारियल चटक जाएगा, और अभी आगे आपको एक जो है वो चनकट झापड़ देने वाला है, वॉट एवर यू कॉल इट, थप्पड़। तो आपने देखा चिंटू डजंट टेक योर वर्ड्स सीरियसली, बिकॉज वर्ड्स आर वेरी फ्रिवलस। उसको मालूम है अभी ये ऐसे ही बोल रहा है। जब फेस पे दिखने लग जाता है एंगर, ये जेन्युइन एंगर है, सोचो वो 1.5 साल का बच्चा पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है उन फेशियल एक्सप्रेशंस पे। करेक्ट। तो और हम देखो, हम तो लोगों को देखना ही भूल रहे। एक्चुअली वी आर लुकिंग एट स्क्रीन्स, वी आर लुकिंग एट देयर डेटा, इट्स जस्ट नॉट लुकिंग एट पीपल। या पॉइंट। कपल्स जो हैं, कपल्स आता है और मुझसे पूछते हैं कि सर आपको तो बात ही नहीं रही हमारे बीच, अब तो हमें इतना भी प्यार नहीं रहा कि हम एक दूसरे की आंखों में देखें। ऐसा बोलते हैं, कहते हैं कि हमें तो इतना भी प्यार नहीं रहा कि हम एक दूसरे की आंखों में देखें। समृद्धि मैं उनको समझाता हूँ, उल्टा है। आपको लगता था आप प्यार में इसलिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, आप एक दूसरे की आंखों में देखते थे। Correct. Yeah, you say such good points, and honestly, the analogies, the poems, the shairis, I'm so mesmerized actually.
सो मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ इन दिस कंटेक्स्ट ओनली, जैसे कि हाँ यू कैन सो अब जिनमें कि हमने ये पूछा कि हमने ये बताया कि जो छोटे से बच्चे हैं दे स्टडी फेशियल एक्सप्रेशंस, सो अब टीनेजर्स हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस यू कैन नॉट लाइक आई पर्सनली ट्राई बट आई एम barely able to decipher anything because I don't even have the scientific knowledge. Also, it's very unpredictable actually. So how do you understand how if any adolescent or if any teenager comes to you or या फिर उनकी मम्मा आती है they are throwing tantrums or stuffs like that in all the adolescent age. So what's the one advice you give them, like two advice I would say? देखो यहाँ पर सुनने की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे एक केस बताता हूँ, तो उसमें एक मॉम जो है वो बाकायदा मुझे कम से कम 10-12 मिनट तक कंप्लेन करती रही कि उनका बेटा उनसे बात ही नहीं करता और उनसे बात ही नहीं करना चाहता और कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता, और उनके हस्बैंड बैठे हुए थे यानी बेटे पे पिताजी। तो बहुत देर सुनने का मैंने उनसे कहा कि वो कम्युनिकेट कर तो रहा है, तो इसे नहीं कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो ऐसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, कहते नहीं कर रहा डॉक्टर, नहीं कर रहा। मैंने कहा वो कम्युनिकेट नहीं करके कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि इंसान 3 वजहों से आपसे कम्युनिकेट करनी छोड़ देता है। पहले तो उसे लगता है कि वो जो महसूस कर रहा है वो कभी कह ही नहीं पाए, वो बात लफ्जों में ढली, अल्फाज में ढली नहीं सर, लफ्ज में ढली थी। दूसरा, वो जो कहेगा आप समझ नहीं, आप समझना चाहती, करेक्ट। और तीसरा, आप समझ भी नहीं, आप उसके लिए कर जैसे ही मैंने हस्बैंड बैठे होते मेरे सर लिखे कहते सर ऑप्शन ए दूसरा पॉइंट लेता हूँ, एक माँ आई, उनकी बेटी है साथ, और बेटी ने माँ की बाट लगा रखी थी क्योंकि लगाना चाहिए हेल्दी, जब बच्चे हेल्दी तरीके से बड़े होते हैं दे पुश पेरेंट्स टू डिस्कवर देयर स्ट्रेंथ। हमारे यहाँ पेरेंट्स समझते हैं, हमारे पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को पालने में, जो छोटा बच्चा खुद को पाल लेता है और नींव पाले तो मोहल्ला पाल लेता है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड कहते थे ना। और हमारे यहाँ सारे माँ बाप जो है छोटे बच्चे में घुसे जाते, पूरे टाइम उसकी हर अदा कैप्चर करनी है, उसकी हर चीज़ देखनी है पूरे टाइम। छोटे बच्चे को जबकि कोई मतलब नहीं है, वो अपने हिसाब से मस जी सकता है। माँ बाप छोटे बच्चे को नहीं लाते, माँ बाप एक टीनेज बच्चे को लाते हैं। छोटे बच्चे को तो सबको पसंद करता है, ताऊजी की गोद में, मासी की गोद में, पड़ोस वाली शर्मा आंटी की गोद में, सामने वाली सोनू दीदी की गोद में, सब प्यार करते हैं उसको। टीनेज में बच्चा किसी को नहीं जिलाता, न टीचर्स को जिला रहा, ना पेरेंट्स से जिला रहा। अच्छा एक्चुअली कई बार खुद से नहीं जिला रहा होगा, खुद को नहीं झेल पा, ऐसे टाइम पे पेरेंट्स रखता, और पेरेंट्स समृद्धि एग्जैक्टली उसी वक्त पे उनको छोड़ देता है। सारा पेशेंस इतने बरसों में खपा दिया जब जरूरत ही नहीं थी बच्चे को, और अब जब जरूरत है तो कहते हैं हम थक गए तुम्हारे लिए कर कर। क्यों किया उस टाइम? एनर्जी सेव करते अभी करने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगता है, पर खैर वो किसी और दिन बात कर। वो पॉइंट ये है कि बच्चे ने पार्ट लग कर गति तो वहां बैठ कर गति, बच्ची तो नहीं कहूँगा 15-16 साल की। अब माँ कहती मुझसे ये बच्चे भी बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब मुझे तो पूरी लाइन भी याद है, काटने को दौड़ती है मुझे। ये टिपिकली मालवा में कहते हैं ऐसी बातें, नॉर्थ के साइड काटने को दौड़ती है मुझे। कहती रही मैंने उनको वकार मैंने कहा आप चुप पर। कहा क्यों? मैंने उसकी बॉडी देखी, आपके पड़ोस में बैठी हुई है, पूरी आपकी तरफ इंक्लाइंड है। ओके, सो दैट मींस उसने कोशिश की है, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसने कोशिश की है कि जितनी बार हो सके आपके साथ फिजिकल टच मेंटेन हो। यहाँ से भी उसका पैर जो है वो जगह की कमी की वजह से इधर नहीं है,
वो आप ही की तरफ है, उसकी पूरी बॉडी बता रही है। हम किसी की तरफ अगर अट्रैक्ट होते हैं तो हम क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन। करेक्ट। इंक्लाइन, इट इज अ फिजिकल वर्ड। या तो कब सोचा वो इंक्लिनेशन पूरा उनकी तरफ, मैंने कहा वो आपको बहुत चाहती, बस उससे दिक्कत हो गई। वो इस वक्त आपको लगातार डिजायरेबल महसूस कराने की कोशिश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब वो डिस्कवर कर रही है अपनी डिजायरेबिलिटी का पोटेंशियल। करेक्ट। मुझसे पेरेंट्स कहते हैं हमारे टीनेज डॉटर या टीनेज सन जो है उसके आसपास सब पड़ा हुआ है, वहीं पिज्ज़ा पड़ा हुआ है, वहीं पे दवाई पड़ी हुई है, वहीं पे जीन्स पड़े हुए हैं, वहीं पे थाली पड़ी हुई है, वहीं पे किताबें पड़ी हुई है, वही लैपटॉप पे काम कर, सब धंधा चल रहा है आज। ये जमा के क्यों नहीं रखता? मैं कहता हूँ जरूरत है आपका ध्यान अब सामान पर है, उसका ध्यान अभी अभी खुद पर आना शुरू हुआ है। 13 साल 14 साल की उम्र है। अब चूंकि उसका ध्यान अपनी तरफ आना शुरू हुआ है तो वो बेखबर नहीं होगा कि थोड़ा आसपास से। और यही बच्चा जब बड़ा होगा तो सब जमा के रखे। करेक्ट होता है। और हम ये नहीं कह रहे कि उनका ये बिहेवियर आपको चेंज नहीं करना है, हाँ, लेकिन उस बिहेवियर को ऑब्जेक्शन के साथ शुरू करके, रिजेक्शन के साथ शुरू करके आप चेंज कैसे कर पाओगे? करेक्ट। आप इसको क्यों ध्यान खींचना चाहते हो उसका हर तरफ, उसका ध्यान खुद की तरफ। तो इसको भी तो चेरिश करो, इसको भी तो सेलिब्रेट करो। करेक्ट। ये पड़ाव भी तो उसकी उम्र में एक ही बार आना है। हाँ, हाँ. The way we celebrate 50s, 25s, celebrate teenage as well. You should. Yeah. It is making of a man, it is making of a woman, Correct. and you should celebrate it. Yeah, and honestly, I think at this point of time, there can be two ways. या तो आपके बच्चे हो सकता है कि they go into different altogether different path which is not desirable for them and for you as well. So as parents and as peers as well, we need to make sure that they are getting enough support. Yes. They are being able to communicate what they want to, and at the same time they have their privacy as well. A lot of times और like अभी भी ऐसा होता है कि बच्चों की privacy नहीं होती. हाँ? So I think privacy is not कि आप फोन चेक नहीं करने दे रहा है बच्चा, that does not mean privacy. Privacy is when they need time, they get time alone. So true. And when they think and jot down their thoughts, so their thoughts should be if permissive, if permitted, then you should have an access to them. Like what happens is there are a lot of parents who think कि बच्चा अगर फोन चेक नहीं करने दे रहा है then they are trying to be modern, अभी Gen Z stuffs like that. I think अगर वो फोन चेक नहीं करने दे रहा है तो भी it's somewhere might be wrong and not generalizing the fact. And you have the right to check their phone as parents as well. But beyond the surface level thing, there is one thing that you're not being able to you're not able to build that connection कि आप आगे से बच्चा आपको आपके आके फोन दे दे कि this is what happened and that's why I'm not giving the phone. So more than what you said, repeating the same thing, more than just focusing on superficial things, we should go deep down into the psychology, into science, and understand why this behavior is happening. And if this behavior is happening, then what's the right way? Or if not, there's no right or wrong way for anybody. Not generalizing again, but what's a suitable way for my child? How should I deal with it? Or suitable way with my peer to deal with it. So Beautiful. delving in that. Very relevant point. Very. और इसमें एक और चीज समझती, हम ये कहते तो नहीं कि बच्चे भविष्य है हमारा। मेरा मानना है बच्चे हमारे भविष्य नहीं है, हमारे भविष्य तो किशोर है, टीनेजर्स हैं। वो आने वाले वक्त में मैन और वुमेन बने हैं, तो उनका तो ध्यान रखना है। Correct. और इस वक्त वो हमारी तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए तो उनको हमारी और ज्यादा जरूरत है। Correct. Yeah. भाई इधर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हो, तो हमारे यहाँ प्राइवेसी को बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ तो बच्चों की रिस्पेक्ट के लिए। Correct. दुनिया में ऐसे भी देश हैं
जहाँ पर एक 3, 4, 5 साल के बच्चे को जब क्लास में बोला जाता है तो ऐसा कहता था, यस स्मिथ, नहीं, यस मिसेस स्मिथ, हैव यू डन दैट? यस मिस्टर शॉन, हैव यू डन दैट? ये 3 साल, 4 साल, 5 साल बच्चे को लगता है मैं मिसेस स्मिथ हूँ और मिस्टर शॉन हमारे यहाँ तेरे मैं इस पुष्प पर खड़े हो जाओ दीदी, मैं इस पुष्प पर इज्जत है तेरी, ये क्या तरीका बॉस? यस, हाँ, गुड पॉइंट. मतलब भाई वो बच्चा है तो बच्चा छोटा आदमी नहीं होता है, बच्चा बच्चा है, अपने आप में एक पूरी रेस है को. हम कहते हैं बच्चा छोटा आदमी, छोटी औरत है, अरे ये थोड़ी होता है, उनकी अपनी दुनिया है. हमारे यहाँ अधिकतर जगहों को बच्चे प्रेमी बनाए नहीं जाते. आज ध्यान से देखो उसका नॉब डोर का, वो डोर का नॉब जो है वो किसकी हाइट के हिसाब से, For a person like who's for an adult. एडल्ट के हिसाब से. वहाँ एक और नॉब क्यों नहीं है जो बच्चा भी खोल सके? Correct. हमने ये वर्ल्ड एडल्ट वर्ल्ड बनाया हुआ है, Yeah. बच्चे का नहीं है वर्ल्ड, Correct. Okay. पूरा एडल्ट वर्ल्ड है ये. Yes. बच्चे को हम बस ये सोचते हैं बच्चा छोटा एडल्ट है, नहीं, बच्चा अपने आप में पूरी एक अलग साइकोलॉजिकली एक अलग एंटिटी है. तो बच्चे को रिस्पेक्ट कीजिए, पर रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंट कर दिया जाए उसे. Correct. और किसी का कान पकड़ लेना, किसी का गाल खींच लेना, ये अफेक्शन थोड़ी होता है. हाँ मतलब ये है किसी का गाल खींचे तो अफेक्शन है. हाँ, पीठ पे मारना. हाँ, पीठ में मारने अफेक्शन है. right. नहीं, अफेक्शन तो वॉइस से निकलता है, अफेक्शन तो सामने वाले के दिल तक पहुंचता है, उसके जहन में पहुंचता है. The way you understand shows how if you're और तो आप जिस तरह से अपने बच्चे को देखते हो उसमें इतना स्नेह मिल जाता है जितना वो तो गलवैया हो तो भी नहीं होता. correct, a very good. Clients who hug just through your lines. Yeah, correct. और उसे पता चल जाता है. Yeah, also the fact that मतलब जो एक जो genuine connection होता है, you don't need to show it via physicals, you know. You don't need to. Yeah. At the same time, I also understand you have to help them learn how to draw boundaries. Correct. But you also help them learn कि कैसे जो किसी की बाउंड्रीज को आप क्रॉस करने लग जाएं उसके पहले उससे पूछ लो गेट खोल के अंदर है. Correct. जैसे जब टीनेजर्स को रेगुलेशन सिखाना, उनको इमोशंस को दबाना नहीं सिखाना. Point. मतलब एक बच्चे को हम ये कहें कि प्लीज बात मत करो, इससे क्या होगा? Yeah. आप उसे बताएं कि बात करना हो अगर तो कब करो, कैसे कर, कितनी कर. भाई वसीम बरेली का शेर है, एल कानूनी का, कौन सी बात कब कहाँ तक कही जाती है, ये सलीका वो तो हर बात सुनी जाती है. Wow. कौन सी बात, कंटेंट, कब, टाइमिंग, कहाँ तक, एक्सटेंट, अगर ये पता हो हर बात सुनी जाती है. Correct. Yeah. उसे ये डिस्क्रिशन भी तो डेवलप कराना है ना, ये विवेक भी तो लाना है. Yeah, and जैसे हम ये समझ के चले, like what I feel is कि बच्चों के साथ हम ऐसे समझ के चले कि they if they are coming to express something, then we should not use our past experiences. Oh yes. You start comparing your past experiences because fortunately I did not feel anything in my teenage years because my parents are very understanding. सारी चीज़ें सुनते हैं. वी हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन. हम रात के 1 घंटा बैठ के बात करते हैं. वी एक्सचेंज थॉट्स एंड वी आर गिवन बोथ. आई हैव अ यंगर ब्रदर दिव्यांश. सो हमारी सबकी चारों की बात होती है एंड वी पुट आवर थॉट्स एंड पुट आवर ओपिनियंस अहेड कि पापा यू शुड डू दिस इन बिजनेस एंड ही लिसन्स. And mama, you're too much in the kitchen. You are not just a housewife. You have much more ability than that. So she started learning something new. We value each other. Right. So that in that ways, and we were never compared कि भाई मतलब हमारे ज़माने में ऐसा होता था. Yes, इसको मैं टिपिकली भिड़े मास्टर व्यू कहता हूँ. Correct. हो गया जो तारक मेहता के उल्टा शो, वो हमेशा वो भिड़े मास्टर वो कैरेक्टर कहता है कि हमारे रामायण में. Yeah. तो बिल्कुल सही कहा आपने, वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ. यहाँ होना चाहिए. Exactly. Because I can credit to you and compliment to your family. thank you. Doing so well. Credit to and the credit especially goes to my mother, who's been who's the wind beneath my wings. Very true. And I also think the credit goes to Divyansh. He's the youngest and he's letting all this happen. He can always veto and to Nikhil now. That's okay. No, but very valid point. उसको अगर नहीं पसंद आता तो we cannot do anything. सानू की. Yes.
So, sir, actually, honestly, if I tell you, I don't want to end this podcast. I'm feeling so good, so good, so good. मतलब, I never ever, I'm speaking it on camera, that I feel Prashant sir's, you are Prashant sir's mentor, and now I see why you are his mentor. I genuinely think that thanks to Prashant कि हम लोग मिल पाए, Yes. and I am honored that he considers me mentor. Yeah, no, and in fact, when we were talking, तो मेरे मन में a thought was going on कि Prashant sir is so lucky. He has someone he can always look up to and talk to about his problems or anything, any advice. And the next thought came, I'll talk to him, I'll talk to sir, and I'll ask him to be my mentor and guide me as well. Right there. And honestly, this was one of the most enriching podcasts I ever had. And as I told you, I don't want to stop, but because time is हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है, हम दोनों को तो ये कॉन्वर्सेशन बड़ा Exactly. को वो जो लोग सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि देखो कहीं जिस पे गुजरती है वही जान. I hope my audience does not say this, and they might not. And I have to say this, you're a fabulous person in the making. You're already a very, very, जैसा होता है लोग कहते हैं wise old woman. I think you are a wise young woman. Thank you. And I generally think कि तुम्हारी वो सिंसियरिटी जो है वो कन्वे होती है. Honey souls. और बस एक ग्रेट क्वेश्चन है, जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ती जाओ. मेरे दादाजी हैं, ये लाइन तो नहीं गई थी पर ऐसा ही कुछ कहा था, पर वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है. वो लाइन थी दैट द ग्रेटेस्ट प्रिविलेजेस टू ग्रो विदाउट ग्रोइंग सिनिक. अंदर इंसान आगे बढ़ता जाए, उसमें कड़वाहट ना है, उसकी मासूमियत को दन ना लगे, दिमाग चतुर हो और दिल मासूम. और तुम ऑलरेडी, मुझे प्रशांत ने बताया कि यू आर ऑलरेडी नाउ ऑन योर वे टू द नेक्स्ट माइलस्टोन. यू आर लाइक, कीप डूइंग वेल. इट इज ऑलवेज वंडरफुल टू सी यंग पीपल ग्रोइंग and touching new milestones. At the same time, जब तुम mentor की बात कर रही थी, I think I also take this opportunity to thank my mentors. Yes. कोई ऐसे ही नहीं हुए सुखाना है, पाँव उस्तादों के दाबे हैं तूफान है. Correct. तो मैंने जिन उस्तादों के पाँव दाबे, उनसे ये समझ लाया. और मुझे खुशी है कि तुम अपनी ज़िंदगी में मेंटोर्स की तरफ देख रही. बट इतना याद रखना, ट्रू मेंटोर्स कभी कभी मेंटोर होते होते टॉर्मेंटोर भी हो जाते हैं. तो प्लीज मेक श्योर दैट you always remain this this sincere. Thank you so much. So now, one last thing, we have a very fun segment with you, wherein actually अभी हमने ये नया start किया, tongue twisters. Wherein you not have to say a tongue twister, you have 30 seconds of time. And now हमारा अभी न्यू रिकॉर्ड बना है प्रशांत. तुम जाते जाते बेइज्जती कराओगे. No, not at all. I know you'll do. So Prashant sir ने 15 किया, Siddharth sir broke his record to 18. And now let's see how much can you do in 30 seconds. देखो मैं कब करूँगा, क्योंकि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में कहते हैं कि इंसान दो ही लोगों की कामयाबी झेल पाता है, एक अपनी संतान की और एक अपने शिष्य की. तो मैं प्रशांत का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ूंगा. Okay. That's okay, go ahead. Okay. So you need to say red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. God. It's a very simple one. Red lorry, yellow lorry. Yes. 1 मिनट में 30 सेकंड. 30 seconds. May let's see how many you can do. 1, 2, 3, start. Red lorry, yellow lorry. 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 Red. Prashant, I'm not going ahead with this one. You still hold the record. Well, that was great. You did so far. Itna I saw you were so clear. So red lorry, yellow lorry, every word with so much clarity. Really like it. We hope that you like the podcast. अगर आपको इस podcast से कुछ सीखने को मिला, then please like, share and subscribe वक्तव्य. And until the next podcast, keep the conversation going. Thank you so much.